Hello dear students, in today's assignment we are going to discuss chapter number 2 which will be coming in your unit test come term examination 1. First of all, back exercise, fill in the blanks. The dash are responsible for formation of mountains and deep sea trenches. Endogenous. The endogenous are responsible for formation of mountains and deep sea trenches. A series of mountains that are close together is known as fold mountains. Glacial valley have U-shaped structure. A plateau formed by uplifting the Earth's crust is called continental plateau. It is known as the plateau which is formed by uplifting of Earth's crust is known as continental plateau. Now, alluvial plains are formed by dash deposit. जो alluvial plains हैं हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो कैसे फॉर्म होती है. इट्स फॉर्म्ड बाय रिवर डिपॉजिट्स. नाउ टिक द करेक्ट. The term used for mountains with frozen river of ice. जो frozen rivers होते हैं ice के, उन mountains को क्या बोलते हैं हम? Glaciers. क्या बोलते हैं? Glaciers. Name the plains that are formed by wind deposition. वो वाली plains जो winds की वजह से deposit हुई हैं, उन plains को क्या बोलेंगे हम? Loess plains. क्या बोलेंगे? Loess plains. Rift Valley is formed by broadening of earth crust. Rift Valley is formed by broadening of earth crust. The age of old mountain is 10 to 25 million years. कितनी एज है old fold mountains की? 10 to 25 million years. The Mexican plateau is called a mineral store. A mineral store. Mexican plateau की क्या बोलते हैं हम? Mineral store. Now comes to match the following. Young fold mountains, Great Dividing Range. उसकी एग्जाम्पल क्या है young fold mountains की? Great Dividing Range. Old fold mountains, Aravallis. ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की क्या हुई एग्जाम्पल? अरावलीज. रिफ्ट वैली की एग्जाम्पल क्या है? राइन. रिफ्ट वैली की एग्जाम्पल क्या है? राइन. पिडमोंट प्लेट्यू इज पैटागोनियन प्लेट्यू. पिडमोंट प्लेट्यू की क्या एग्जाम्पल है? पैटागोनियन प्लेट्यू. कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, अरेबियन प्लेट्यू. कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू की एग्जाम्पल क्या है? अरेबियन प्लेट्यू. नाउ कम्स टू state whether true or false. Mountains are formed within short period of time. As we have read in this chapter that mountains is a long process. It took millions of years to form a mountain. So this statement is totally false. Mountains are habitat to wildlife. Yes, as we know that there are several mountains which are forest covered. So it is a habitat to wildlife. रिफ्ट वैली हैव U-shaped structures. रिफ्ट वैली मैंने आपको बताया था कि रिफ्ट वैली की क्या शेप है? इट्स V शेप. वैली इज ऑलवेज ऑफ V शेप. तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स. द ग्रेट प्लेन्स ऑफ USA इज टाइप ऑफ इरोजनल प्लेन. नो, this is also a false statement. About 80% of world population live on plateaus. No, only 20% of world population live on plateaus. Rather, 80% of world population live on plains. Now, the next is answer in 1 or 2 sentences. This is 15th April assignment. Explain endogenous and exogenous process. Process that are caused by forces from within the earth are called endogenous processes. जो process अर्थ के विदिन होते हैं, ठीक है जी,
फोर्सेस की वजह से जो विद इन अर्थ के अंदर ही होते हैं जो प्रोसेसेस, उन्हें बोलते हैं एंडोजीनियस। जो प्रोसेसेस अबव द अर्थ क्रस्ट होते हैं, अर्थ क्रस्ट के ऊपर फोर्सेस की वजह से, चाहे वो आप विंड लगा लो या इरोजन लगा लो, ऐसे जो प्रोसेसेस होते हैं वो उनको एक्सोजीनियस बोलते हैं। एंडोजीनियस प्रोसेसेस जो अर्थ क्रस्ट के नीचे होते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वैलीज? देयर आर 3 टाइप ऑफ वैलीज: रिवर वैली, रिफ्ट वैली, ग्लेशियर वैली। नाउ यू हैव टू टेक केयर, अगर तो ये क्वेश्चन आया 2 मार्क्स में तो आप जस्ट लिखोगे नेम्स ऑफ द वैलीज, रिवर वैली, रिफ्ट वैली, ग्लेशियर वैली। बट if this same question come in 5 marks or 4 marks, you have to elaborate the river valley, rift valley as well as glacial valley. Now first of all, river valley, it is formed by flowing rivers, it has a V-shaped structures। तो river valley की कौन सा structure होता है? V-shaped structures। Now rift valley, it is formed by broadening of earth crust due to movement of plates beneath the earth surface। जो सरफेस के नीचे जो होती हैं प्लेट्स, उनके मूवमेंट की वजह से जो ब्रॉडनिंग होती है अर्थ क्रस्ट की, उसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। इट हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर। क्या है स्ट्रक्चर इसका? लीनियर स्ट्रक्चर। नाउ ग्लेशियल वैली, इट इज़ फॉर्म्ड बाय मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियल वैली है वो जब ग्लेशियर्स की जो आइस होती है उनकी मूवमेंट से जो बनती है, इट हैज़ यू शेप्ड स्ट्रक्चर। इन वैलीज का सिर्फ यू शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है। नाउ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेट्यूज। अ प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट एंड एलिवेटेड लैंड विद स्टीप स्लोप। One or more side of plateau are raised above the surrounding area। अब plateau क्या होता है? It is a kind of table plane, ठीक है। टेबल जैसी फॉर्म में एक प्लेन है, ठीक है। जैसे हम लोग प्लेन्स में रह रहे हैं तो हम दूर दूर तक देखेंगे तो हमारा लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन प्लेट्यूज में ऐसा नहीं होता है। प्लेट्यूज में कई जगह थोड़ी नीचे होती है, कई जगह थोड़ी एलिवेटेड होती है, थोड़ी हाइट पे होती है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, अ प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट। ये फ्लैट होता है लेकिन एलिवेटेड लैंड होती है। आसे पासे की जो इधर उधर जो लैंड है, जो सराउंडिंग जो एरिया है, उससे थोड़ा अबव होता है। नाउ आंसर इन अ पैराग्राफ और 2। सबसे पहले है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड अ प्लेट्यू। प्लेट्यू और माउंटेन में क्या डिफरेंस है? माउंटेन इज़ अ नैरो एट टॉप, एज यू नो इट have V shape on the top, the tilted V। Plateau is a flat at top। मैंने अभी आपको बताया था कि plateau क्या है, वो फ्लैट होता है टॉप से। माउंटेन एलिवेशन इज इन सेवरल थाउजेंड मीटर। जो माउंटेन्स की एलिवेशन होती है, जो चढ़ाई होती है बोल सकते हैं, जहाँ जो उनकी स्लोप होती है वो 1000 मीटर्स में होती है। प्लेट्यू एलिवेशन इज़ बिटवीन सेवरल 100 एंड सेवरल 1000 मीटर। तो ये 100 मीटर्स में ये काउंट हम करते हैं। हाई माउंटेन्स आर स्नो कैप्ड। जो बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाइट वाले माउंटेन्स होते हैं, दे आर स्नो कवर्ड। मोस्ट ऑफ द प्लेट्यूज आर नॉट कवर्ड विद स्नो। ज़्यादातर जो प्लेट्यूज हैं वो स्नो से कवर्ड नहीं होते। नाउ नेक्स्ट इज ग्लेशियर्स आर फाउंड इन माउंटेन्स। जो ग्लेशियर्स हैं वो वहाँ पर फॉर्म होते हैं। प्लेट्यूज में कोई भी ग्लेशियर्स नहीं होते। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स? दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी ईजी ऑल्सो। अब माउंटेन्स की हमने उनको बताना है कि माउंटेन्स की इम्पॉर्टेंस क्या है, हमारे लिए माउंटेन्स क्या क्या करते हैं, हमें क्या क्या देते हैं। माउंटेन्स आर रिच सोर्स ऑफ वाटर। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स। सबसे पहले माउंटेन्स पता है हमें पानी देते हैं। कहाँ से देते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं उनमें ग्लेशियर्स होता है, तो वो जो रिवर्स हैं वो ग्लेशियर्स से ही पानी जो पिघल के वो रिवर की फॉर्म में हमें नीचे आके मिलता है। माउंटेन्स आर रिच इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन, जो भी
पेड़ पौधे जो भी हैं, फौना मीन्स वाइल्ड लाइफ, जो भी वाइल्ड लाइफ है हमें सारा कुछ देते हैं। माउंटेन्स आर आइडियल टूरिस्ट स्पॉट्स। अब ये इकॉनमी को इन्हांस करने के लिए किसी भी कंट्री की इकॉनमी को इन्हांस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं। मैनी एडवेंचरस स्पोर्ट्स आर ओनली पॉसिबल इन माउंटेन्स। बड़ी तरह की स्पोर्ट्स हैं लाइक बंजी जंपिंग एक्सेट्रा, ऐसे काफ़ी स्पोर्ट्स हैं जो सिर्फ माउंटेन्स में ही हम कर सकते हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड मैनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक वुड, हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, हनी एक्सेट्रा। माउंटेन से ही हमें जो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिलते हैं, लाइक वुड हो गई, हर्ब्स हो गई, कितनी तरह की जड़ी बूटियाँ जो हैं वो माउंटेन्स के फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, हनी पाई जाती है। दैट्स ऑल फॉर दिस असाइनमेंट। नाउ फॉर द यूनिट टेस्ट यू हैव टू prepare for this assignment chapter number 2. In the next assignment we will cover chapter number 3. Thank you.